لاہور ہائی کورٹ نے سنوکر کلب کے کاروبار کو جائز اور قانونی قرار دے دیا۔ جسٹس جواد ظفر نے شہری محمد راشد کی اپیل پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے شہری کا سنوکر کلب بند کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ سنوکر کلب چلانا قانونی اور تفریحی سرگرمی ہے، کوئی قانون اس پر پابندی عائد نہیں کرتا۔ آئین کے مطابق ہر شہری کو قانونی بزنس کرنے کا حق ہے۔ بلیئرڈ اور سنوکر کے کھیل غیر اخلاقی نہیں، نہ ہی قانون کے تحت ممنوع ہے۔ کاروبار کو مبہم شکایات پر غیر معینہ مدت کے لیے بند نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور میں فضائی آلودگی کے بدلتے تیور، صبح کم، دوپہر کو زیادہ اور سپہر آلودگی عروج پر آ گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 320 ہو گیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ سول سیکریٹریٹ اور اطراف میں فضائی آلودگی کی شرح 586، برکی روڈ پر 399، جوہر ٹاؤن میں ایئر کوالٹی انڈیکس 372، کنٹونمنٹ میں شرح 359 ہو گئی۔ لاہور میں سرمئی بادلوں کا بسیرا، محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کی نوید سنا دی۔ ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق 20 سے 21 دسمبر کے دوران لاہور، شیخوپورہ، سرگودا، خوشاب میں بارش برسے گی۔ فیصل آباد، حافظ آباد، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ میں بھی بارش ہوگی۔ ڈی جی عرفان علی کاٹھیا کے مطابق بارشوں کے باعث دھند اور اسموگ کی صورتحال میں کمی واقع ہوگی۔ اس وجہ سے پاسبل نہیں ہے کہ کوئی اب تک عمل درآمد نہ ہوا ہو کہ یہ ساری سسٹم بیسڈ اپلیکیشنز ہیں۔ ایسا کوئی بھی آپ شناختی کارڈ پی ڈی ایم اے کے ساتھ شیئر کریں گے، اربن یونٹ کے ساتھ شیئر کریں گے، پی آئی ٹی بی کے ساتھ شیئر کریں گے یا ڈائریکٹلی ڈی سی آفس کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کی ساری ٹریسیبلٹی وہ اویلیبل ہے۔ اگر کوئی ایسا کیس ہو تو وہ بالکل اس کو ٹریس آؤٹ کیا جائے۔ سیاح سفر سے قبل موسم کی صورتحال کو ضرور چیک کریں، ڈی جی پی ٹی ایم میں عرفان علی کاٹھیا کا مشورہ۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ برف باری میں ممکنہ ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے مقامی انتظامیہ الرٹ ہے۔ مری میں 14 سہولت مراکز قائم کر دیے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ مری حکومت پنجاب کی ترجیحات میں سر فہرست ہے اور وہاں کی انتظامیہ کے لیے اشیاء ضروریہ فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جو ترسیلات زر ہیں وہ ہماری آنا شروع ہو جائیں تو وہ ترسیلات زر بہرحال جتنی ایک میکسیمم کیپیسٹی ہو سکتی ہے وہی آئیں گی نا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ انڈسٹریلائزیشن آپ نہیں کر رہے۔ آپ کو آئی ایم ایف نے بھی یہ بات کہی، آپ آئی ایم ایف کی چند باتیں تو مانتے ہیں لیکن جس کی زد آپ پہ پڑ رہی ہوتی ہے وہ نہیں مانتے۔ آپ نے ان ترسیلات اس اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ آئی ٹی سیکٹر میں آپ نے کیا کیا ہے سوائے نمائشی اقدامات کے؟ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں بے روزگاری ہے، بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو گیا، وہ مزید آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹ اس پراپر طریقے سے نہیں بڑھ پا رہی، آئی ٹی میں آپ کا کوئی قدم سامنے نہیں آ رہا، زراعت جو آپ کی بیک بون ہے اس میں آپ 600% نیچے چلے گئے۔ تو آپ صرف سٹے کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں گے؟ امیر جماعت اسلامی نے 21 دسمبر کو دھرنے دینے کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں پریس کانفرنس میں یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں 2015 میں آخری بلدیاتی الیکشن ہوئے۔ فاشغاف الفاظ میں بولے کہ غیر جماعتی بلدیاتی الیکشن کو قبول نہیں کریں گے۔ کانٹیکٹ بہت جاندار چیز ہوتی ہے، and a people to people contact, if the hatred is inculcated in that, if the hatred is professed, sustained, and then it is preached, then it has to live in generations then. So somehow these regional cooperation organizations have to work on this also, that how this hatred, that hatred might be religious, that hatred might be political, that hatred might be for any other thing which has a bearing on this regional cooperation. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ماہر ڈاکٹرز کو پاکستان کی اشد ضرورت قرار دے دیا۔ ملک محمد احمد خان نے سیمینار سے خطاب میں کہا،
नौजवान डॉक्टर मुल्क और कौम की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे में इनकलाबी इस्लाहात कर रही है। क्लिनिक ऑन व्हील्स, एयर एम्बुलेंस और मरीज नवाज हेल्थ क्लिनिक्स अवामी फलाह के मंसूबे हैं। पंजाब असम्बली के MPA हॉस्टल की तामीर का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला। MPA हॉस्टल फेज़ 2 में जदीद सहूलियात और पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम फराहम किया जाएगा। पंजाब असम्बली की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए अरकान असम्बली के लिए रिहायशी सहूलियात में बेहतरी के लिए मनसूबा बनाया गया है। MPA हॉस्टल फेज़ 2 1 अरब 14 करोड़ 37 लाख रुपए से बनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट की मुलाकात की गई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को तिजारत, तालीम, ज़राअत और माहौलियात के शोबे में फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों से सयाहत और तिजारत को मज़ीद वसअत दी जा सकती है। हिजरत सुन्नत नबवी है, हिजरत में बरकत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हिजरत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि क़याम पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत की गई। हिजरत माशरों को नई तवानाई, तनूम और मौक़े फराहम करती है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। माइग्रेशन महज हिजरत नहीं बल्कि हुनर, काबिलियत, जिद्दत और तजर्बे का आलमी तबादला भी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की माशी और समाजी सफ़ीर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हंगो क्लास गाजी आबदोज़ की लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। वज़ीर आला ने हंगो क्लास आबदोज़ों की तैयारी के लिए पाक चीन इश्तराक-ए-कार को सराहा। उन्होंने समुद्री दिफा के लिए पाक बहरिया की खदमात को खिराज तहसीन भी पेश किया। वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब अमजद मलिक ने महाजरीन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। तरसीलात ज़र के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम कर रहे हैं। माइग्रेशन हिजरत नहीं बल्कि हुनर और तजर्बे के आलमी तबादले का ज़रिया है। हर माइग्रेंट के इंसानी वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना आलमी ज़िम्मेदारी है। मज़ीद कहा कि माइग्रेशन ने मेहनत कशों और तलबा के लिए आलमी मौक़े पैदा किए हैं। ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए नया मुसविदा हतमी मराहिल में दाखिल। ऑर्डिनेंस में तरामीम के लिए कमेटियों की जानिब दस्तावेज़ तैयार। कमेटियों में ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, EPA, ज़िली इंतज़ामिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदे शामिल हैं। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर गाड़ियों को एक सफ़र में एक ही चालान का अजरा किया जाए। ट्रैफिक पुलिस या PHP बार बार एक ही सफ़र पर चालान का अजरा नहीं करेंगे। पंजाब को साफ सुथरा रखने का मिशन। कूड़े को आग लगाना या घर से बाहर फेंकना जुर्म करार। 50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना, 3 से 7 साल कैद की सज़ा होगी। कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद होगी। घर, दुकान, फैक्ट्री के बाहर कूड़ा फेंकने वालों को 25,000 रुपए माहाना जुर्माना होगा। गली मोहल्लों की नालियों में कूड़ा फेंकने पर 10,000 रुपए देना होंगे। शहरियों ने सुथरा पंजाब मिशन के इक़दाम पर खुशी का इजहार कर दिया। शहरी कहते हैं कि पंजाब की तारीख में पहली बार अवामी खिदमत के लिए ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे अवाम अन्नास बराह रास्त फ़ायदा हासिल कर सके। सुथरा पंजाब की तरफ से ये जो भारी जुर्माने होने जा रहे हैं, ये जो गंदगी के ढेर फैलाए जाते हैं, ये आग वगैरह लगाई जाती है, इसके बारे में ये बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। भारी जुर्माने होने चाहिए। ये जो रक्शे पे जाते हैं, ये पीछे करके थूक फेंक देते हैं दूसरे के ऊपर, उसकी छींटे डलती हैं। ये बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का अच्छा इकदाम है। सफाई सुथराई होनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ और हर सड़ਕਾਂ भी साफ़ होंगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। कानून जो है ये बहुत अच्छा कर रहा है। उनको जुर्माना होगा जो कूड़ा वगैरह फेंकेंगे, ठीक है। तो यही मैं अपनी वाम को कहूँगा, पाकिस्तान की वाम को, कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप गंद फेंकते हैं, आग लगाते हैं, ये हमें नुकसान है, आपको ही नुकसान है, ठीक है। रोड पे गंद पड़ा होता है, बाइकें वगैरह आती हैं, ज़्यादा नुकसान होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, 100 मामला वगैरह।
पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 10 शहरों में तरक्याती स्कीमें शुरू होंगी, 54 अरब रुपए खर्च होंगे। वज़ीर बल्दियात कहते हैं कि 7.5 अरब रुपए की ग्रांट्स जारी की जा चुकी हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का तारीखी इक़दाम, मेहनत कशों के लिए 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी, पंजाब के मेहनत कशों में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहम्मद मंशा बट से मुख्तलिफ अजला के लेबर नुमाइंदगान की मुलाकात की गई। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत आपकी अपनी हुकूमत है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज आपकी फलाह व बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही है। FBR ने ताकत के जोर पर 2 साल में 1263 अरब रुपए रिकवर कर लिए। 2024 और 25 में इन्फोर्समेंट के जरिए 874 अरब रुपए वसूल किए। FBR 389 अरब रुपए वसूल कर चुकी है। पैक्टा की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ऑनलाइन ट्रेनिंग की डेडलाइन में तोसी, 6 हफ्तों की ऑनलाइन ट्रेनिंग मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 मुकर्रर कर दी गई। तकनीकी मसाइल की बिना पर पैक्टा ने ट्रेनिंग की मुद्दत बढ़ा दी। डायरेक्टर जनरल पैक्टा की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया।